Good morning, students. See, we have started with our chapter number 1, that is matter in our surrounding. What we have seen in this chapter, we'll go through a quick revision for it, and today we'll complete our chapter. So what we have learned till now, that is everything surrounding us is made up of matter. Everything surrounding us is made up of matter, whether it is living being or non-living being. Then we have seen the physical nature of matter. So physical nature of matter is what we have seen, that matter is made up of particles, the first physical nature, and the another one is how small are these particles of matter. ये matter के जो particles है वो कितने छोटे हैं, ये दो उसकी physical state है, right? और इसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी देखी है पर्टिकुलरली. देन वी हैव सीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. So characteristics of particle, the very first characteristic is particles of matter have space between them. ये हमने देखा था कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, right? The other characteristic was particles of matter are continuously moving. जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं. वो भी हमने एक एक्टिविटी से देखा था. कौन सी एक्टिविटी से? जैसे हमने एक ड्रॉप डाल दिया था बीकर के साइड में, हनी का डाला हुआ है या इंक का डाला हुआ है, तो उससे हमने पता किया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग. और फिर मैंने आपको कुछ खाने पीने की बातें बताई थी कि जिससे हमें स्मेल से हम पता कर सकते हैं कि कुछ अच्छा बना हुआ है, राइट? अदर देन दैट, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स इज, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जो हमने पढ़ा था एक बेस्ट फ्रेंड वाले जैसा, कि हमारी बॉन्डिंग उनके साथ काफ़ी अच्छी होती है, राइट? सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये उसकी अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स है. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. इन तीनों स्टेट के बारे में हमने पढ़ा था, उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था. सी, दिस इज योर सॉलिड स्टेट. The figure which you are seeing on the screen is the very first state is solid, where you can see this all the particles are closely packed. The B figure is showing the state of liquid, where you can see some space between these particles, and the C figure indicates gaseous state, in which the particles are having maximum space between them. And we have learned all the property of this solid, liquid and gaseous state. Then we have seen that whether the state can change or not. Yes, we have seen that the solid can convert into liquid, liquid can convert into gas. So when the solid convert into liquid, what it is known as? Yes, it is known as melting. When the solid converts into liquid, it is known as melting. So the temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point, right? Other than that, we have seen that particular liquid is changing to gaseous state, or you can say vapor state. So that is known as vaporization. We have learned about latent heat of vaporization and latent heat of fusion. What you understand by latent? That latent means hidden energy, right? We have seen that even on giving continuously heat to the substance, the temperature does not rises up. Why? We have seen that the particles need some energy
to overcome from the force of attraction, and that energy which is hidden is known as latent heat. And if it is latent heat of fusion, it means that solid is converted to liquid, and so the particles of solid require the energy to overcome from force of attraction, right? The other state, that is liquid to gaseous state, that is vaporization, and one more conversion is left, that is conversion of solid into directly gaseous state, or vice versa. Or vice versa means the gaseous state can directly converted into the solid state. For that, the activity is given, activity 1.13 is given. Here you can take कैम्फर, दैट इज़ आप कपूर ले सकते हो, उसकी जगह पे अगर कपूर नहीं है तो यू कैन टेक अमोनियम क्लोराइड ऑल्सो, राइट? या फिर आप नेफ्थलीन की गोलियां ले सकते हो जो आप लोग घर में यूज़ करते हैं, या वॉशरूम्स के अंदर कोई डाल के रखता है, बेसिन के अंदर डाल के रखता है, जिसकी एक अच्छी सी स्मेल होती है, वो नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं। मतलब आप लोग के घर में शायद उसको डामर की गोलियां बोलते हैं, राइट? So these substances are those substances which can directly converted from solid to gaseous state, and that is known as what? It is known as, yes, correct, it is known as sublimation. So here you will find an activity, that is you are supposed to take camphor or ammonium chloride or that naphthalene balls in a china dish. क्या किया हमने? चाइना डिश के अंदर या तो अपने कपूर रख दिया या अमोनियम क्लोराइड रख दिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। मतलब अगर वो पूरा एक सॉलिड फॉर्म में एक बड़ा सा क्रिस्टल हो तो उसको हमने तोड़ के पाउडरी फॉर्म बना दिया। देन उसके ऊपर हमने क्या कर दिया? इन्वर्टेड फनल लगा दिया। तो ये जो है दिख रहा है आपको कोन शेप के अंदर, इन्वर्टेड कोन शेप में, दैट इज़ योर फनल। तो हमने इन्वर्ट करके फ़नल को रख दिया। इन्वर्ट मतलब उल्टा करके रखा ताकि वो जो चाइना डिश है उसके ऊपर फ़नल का जो ऊपर का सर्कुलर फॉर्म होता है वो उसके अंदर सेट हो जाए, और जो रॉड जैसा पीछे से जो है स्ट्रोक के एंडेड फॉर्म में जो होता है वहाँ पे हमने एक कॉटन लगा दिया। तो कॉटन इसीलिए लगा रहे क्योंकि क्या होगा कि अगर हम उसे हीट करेंगे तो कोई भी गैसेस निकल रहा है तो यहाँ से वो एस्केप ना कर जाए। तो हमने इस फनल के स्टेम के ऊपर कॉटन प्लग लगा दिया। अब हमें क्या करना है? नाउ वी हैव स्टार्टेड हीटिंग दिस सब्सटेंस। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? वेन एवर वी आर स्टार्टिंग हीटिंग दिस सब्सटेंस, तो धीरे धीरे दिस सॉलिड सब्सटेंस, वेदर इट इज़ कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड और दैट नेफ्थलीन बॉल, इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द फ्यूम्स, मतलब गैस स्टेट में चला जाएगा, उसका वेपर्स बन जाएंगे, ठीक है? और अगेन दैट वेपर्स विल कंडेंस इटसेल्फ एंड कम टू द डायरेक्टली सॉलिड स्टेट, ठीक है? सो दिस कन्वर्जन ऑफ solid to directly gaseous state or vice versa is known as sublimation. It is known as sublimation, right? इसका एक और एग्जाम्पल अगर हम ले सकते हैं, जैसे ड्राई आइस के बारे में आपने सुना होगा। तो ड्राई आइस क्या होता है? तो ड्राई आइस इज नथिंग बट द सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है इट इज़ इन गैसियस स्टेट, तो उसको कंप्लीटली कूल करके हाई प्रेशर पे जब उसको कर देंगे तो एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इट विल कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू सॉलिड फॉर्म, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, देयरफॉर इट इज़ नोन एज ड्राई आइस। तो अभी आपको पता चल गया कि ड्राई आइस क्या होता है जी। नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? तो हमने देखा कि जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम क्लोजली पैक होते हैं, तो अगर हम उस पर प्रेशर देंगे तो भी पार्टिकल्स के बीच में उतना स्पेस नहीं होता है कि वो लोग क्लोज आ सके, राइट? लेकिन लिक्विड स्टेट के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि लिक्विड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। तो थोड़ा सा स्पेस होने की वजह से अगर हम थोड़ा सा उस पर प्रेशर डालते हैं, इफ़ वी आर अप्लाइंग प्रेशर ऑन दोज पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे। तो जैसे ही वो क्लोज आ जाएंगे तो दोज पार्टिकल विल फॉर्म द
अरेंजमेंट लाइक सॉलिड स्टेट। तो प्रेशर इंक्रीज करने से इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। और इन द सेम मैनर जब आपके पास गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स है, तो अगेन ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर ऑन द गैस पार्टिकल्स एंड गिविंग लो टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर हम कम क्यों कर रहे हैं, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा कि पार्टिकल्स अपनी जगह से भागने लगेंगे, तो जितने डिस्टेंस पे और ज़्यादा डिस्टेंस में आ जाएंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हमें गैसेस पार्टिकल को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो वी नीड टू लो डाउन द टेम्परेचर। इन द सेम मैनर अगर हमें लिक्विड के पार्टिकल्स को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो अगेन वी नीड टू लो डाउन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कम करने से गैस में से लिक्विड होगा और लिक्विड में से सॉलिड होगा। इन द सेम मैनर अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर ऑन अप्लाइंग प्रेशर, तो प्रेशर इंक्रीज करने से गैस के पार्टिकल्स और क्लोज आ जाएंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम वे लिक्विड के जो पार्टिकल्स है जिसमें थोड़ी सी जगह बची होती है, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, दैट विल कम मोर क्लोज टू ईच अदर और उसकी वजह से इट विल कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ pressure. Keep these particles will come closer. See in the figure 1.8 you will see the first figure is showing the gaseous state. तो वो गैसियस स्टेट के अंदर से ऊपर से जब हम पिस्टन को अंदर की तरफ भेजते हैं तो दिस पार्टिकल्स विल कम क्लोजर। तो उसका इफेक्ट क्या आएगा कि दोस गैसियस पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड पार्टिकल्स, जो आप सेकेंड फिगर में देख सकते हो। जो मिडिल वाला फिगर है उसके अंदर आपने देखा कि पार्टिकल्स यहाँ पे और ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं। अगेन व्हेन यू आर अप्लाइंग हाई प्रेशर यू विल फाइंड द थर्ड फिगर वेर इन द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। तो हमें समझ में क्या आया कि ऑन गिविंग हाई प्रेशर to the states it will converted into gaseous to liquid and that liquid into solid state, right? And there we have learned about solid carbon dioxide gas, solid carbon dioxide that is known as dry ice। तो उसका यहाँ पे एक देख के रखा हुआ है कि when solid carbon dioxide gas converted directly into gaseous state on gaseous state on decrease of the pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state। तो liquid state में आए बिना वो directly solid में आ रहा है and it is known as dry ice, ठीक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें किसी स्टेट वी आर सपोज टू गिव द चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। Now the last topic of our chapter is evaporation। अभी आपने देखा होगा evaporation में हम क्या बता सकते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको 1 स्पून लेनी है, 1 स्पून ऑफ वाटर लेना है और 1 स्पून ऑफ वाटर आप एक ग्लास में डालो, ठीक है। और वैसे ही 1 स्पून ऑफ वाटर आप एक सॉसर में डालो या किसी प्लेट में डालो। तो प्लेट में डालने से क्या हो जाएगा कि पानी पूरा फैल जाएगा। ग्लास के अंदर डाला है तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इकट्ठा हो जाएगा। तो किस में सबसे ज़्यादा वाटर इवॉपरेट होगा, तो आप देखोगे कि अगर कुछ देर बाद अगर आप आओगे तो देखोगे कि अरे पानी तो गायब हो गया। तो सबसे ज़्यादा पानी जल्दी से इवॉपरेट किस में हो जाता है कि जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा था। अगर आपने प्लेट में डाला हुआ है पानी तो प्लेट के अंदर से सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से पानी और फैल गया, तो वो उस वाटर को ज़्यादा एनर्जी मिल गई और वो क्या होने लगता है, प्रिट होना स्टार्ट कर देता है। हमने क्या देखा, जो प्लेट के अंदर पानी रखा हुआ था उसे तो हमें हीट भी नहीं करना पड़ा, ग्लास के अंदर पानी रखा था उसे भी हमें हीट नहीं करना पड़ा, विथआउट हीटिंग ही वो पानी गायब हो गया। तो इनटू वेपर स्टेट दैट इज़ योर इवॉपरेशन। उसके दूसरे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे हमें कपड़े सुखाते हैं
तो कपड़े सुखाने के टाइम हम क्या रखते हैं कि कपड़ों को फैला के रखते हैं, ताकि क्या होता है उसके अंदर से जल्दी से वो कपड़े सूख जाए, तो उनका इवॉपरेशन जल्दी से हो जाए, राइट। तो दैट इज़ योर इवॉपरेशन। ओके, अगर वो पानी जो हमने प्लेट में रखा हुआ है, ग्लास में रखा हुआ है, उसको कहीं पे अंधेरे वाली जगह पे अगर हम रख देंगे, एकदम ठंडी जगह पे, तो उसका इवॉपरेशन उतना जल्दी नहीं होगा। लेकिन अगर उसको हमने धूप में रख दिया है तो इवॉपरेशन जल्दी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ वो क्या है, इवॉपरेशन है। और उसके साथ में मैंने आपको क्या बताया कि कहाँ पे इवॉपरेशन ज़्यादा होता है और कहाँ पे कम होता है। वो पॉइंट हम फिर से डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन ये सिर्फ बातें थी जो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, इनिशियली इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। अब क्या होता है इवॉपरेशन के अंदर, हम कोई भी अगर हम मैटर की बात करते तो उसके अंदर पार्टिकल से बने हुए थे। हमने देखा कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो तो कंटिन्यूसली मूव करते ही रहते, फिर चाहे वो गैसेस के स्टेट में हो, सॉलिड के स्टेट में हो या लिक्विड के स्टेट में हो। लेकिन सबकी जो मूवमेंट की जो एनर्जी होती है, मतलब सबके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होती है। अगर मैं आप ही लोग के क्लास की बात करूँ तो आपकी क्लास में कुछ हाइपर एक्टिव बच्चे होंगे, कुछ ऐसे शांत वाले बच्चे होंगे, तो कुछ बच्चे है कि जो एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब पूरा दिन बक 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 करते रहते हैं, मतलब उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा रहती है कि दे कैन टॉक एंड टॉक थ्रू आउट द डे, है ना। तो वैसे ही कुछ पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और गैस के अंदर भी होते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स जैसे आप लोग के क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं ना, वैसे मैटर के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है कंपेयर टू अदर पार्टिकल्स। उनके फ्रेंड्स से ज़्यादा एनर्जी उन लोग के अंदर होती है। तो जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो ही क्या करते हैं, फटाफट से भागना शुरू कर देते हैं। तो जो एवॉपरेशन है, तो वो इवॉपरेशन क्या होता है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो इन पार्टिकल्स की ज़्यादा है वो वहाँ से एस्केप कर जाएंगे। तो हम अगर लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड अगर हमने किसी कंटेनर के अंदर भरा हुआ है तो लिक्विड जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उसको वो ओवरकम होके वेपर के स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब वो वेपर के स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, बॉइलिंग अगर हम उसको हीट किए बिना ही कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज़ योर इवॉपरेशन, राइट। अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इवॉपरेशन को अफेक्ट करते हैं। उसके लिए एक्टिविटी दी है, तो जो एक्टिविटी मैंने आपको अभी बता दिया कि प्लेट में रखा हुआ पानी है, ग्लास में रखा हुआ पानी है, तो प्लेट में रखा हुआ पानी जल्दी से इवॉपरेट हो जाएगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ग्लास के अंदर सरफेस एरिया कम होने की वजह से जितना जल्दी प्लेट में ख़त्म हो जाएगा उतना जल्दी ग्लास में नहीं होगा। उसके अलावा मैंने आपको बोला कि अगर हम एकदम से ठंडे से एरिया में रख देंगे और एक को धूप में रख देंगे तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, धूप के अंदर जल्दी से इवॉपरेशन हो जाएगा क्योंकि गर्मी की वजह से पार्टिकल्स को और ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है और जितनी एनर्जी ज़्यादा मिले उतने जल्दी इवॉपरेट हो जाते हैं, राइट। तो यही सारे उसके फैक्टर्स हैं। तो हम एक एक करके सारे फैक्टर्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज़ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अभी मैंने आपको बोला ना कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा उसका इवॉपरेशन होगा। तो जो इवॉपरेशन है वो हमारा सरफेस फिनोमिनन है। क्यों सरफेस फिनोमिनन है, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सरफेस वाले पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए वो फटाफट गायब होने लगते हैं। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना फटाफट से इवॉपरेशन होगा। जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना इवॉपरेशन कम हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे होगा। तो अभी ये मैंने जो अंडरलाइन किया है उसमें देखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कपड़े सुखाए तो हम उसको फैला के रखते, तो फैलाए हुए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतना इवॉपरेशन ज़्यादा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जो मैंने आपको बोला ना कि अगर आप धूप में रखोगे तो वो फटाफट से उसके अंदर से इवॉपरेशन हो जाएगा, लेकिन अगर कोई ठंडी जगह पे, अंधेरी वाली जगह पे रखोगे तो उसका इवॉपरेशन कम होगा। तो मतलब क्या समझे हम इसके अंदर कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पे पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से वो भागने लगते हैं, इसीलिए वो जल्दी से वेपर स्टेट में चले जाते हैं। तो दूसरा फैक्टर है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर।
अब थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी मतलब क्या? ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो जितना एटमॉस्फेयर के अंदर पानी का जो होल्ड है उतना ज़्यादा होगा तो क्या करेगा कि मैक्सिमम ह्यूमिडिटी की वजह से उसके पास ऑलरेडी वाटर वेपर तो प्रेजेंट है ही, तो वो और ज़्यादा उसके अंदर ले नहीं सकता। अगर आप एक बेंच पे 4 जने बैठे हुए हो और 5वें को मैं बिठाना चाहती हूँ तो आप लोग नहीं बिठा पाओगे क्योंकि ऑलरेडी आपकी बेंच जो है वो ऑक्यूपाइड है। तो क्या होता है कि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी एटमॉस्फेयर के अंदर तो वो इवोपरेशन जल्दी नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवोपरेशन जल्दी हो जाएगा। अभी पता चला ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी मतलब कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर ज़्यादा होगा तो वो इवोपरेशन नहीं करवा पाएगा, क्योंकि हमारे जो कंटेनर है या हमें किसी चीज़ का इवोपरेशन करवाना है, किसी सब्सटेंस का किसी प्लेस के अंदर रखे हुए का, तो वो नहीं करवा पाएगा क्योंकि उसके पास उतनी वाटर वेपर ऑलरेडी उसके पास मैक्सिमम है, तो उतना जल्दी वो इवोपरेशन नहीं करवा सकता। तो इवोपरेशन जल्दी करने के लिए हमारे पास ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, राइट। उसके बाद है इंक्रीज़ इन विंड स्पीड। मतलब जितनी ज़्यादा हवा चलेगी तो हम जितनी हवा ज़्यादा देंगे उतना ही पार्टिकल्स एक जैसे जल्दी दूर होते जाएंगे, और जितना दूर होते जाएंगे उतना उनका इवोपरेशन, तो जितनी हवा ज़्यादा चलेगी उतना इवोपरेशन ज़्यादा होगा। और वो हवा भी मतलब मॉइस्ट एयर नहीं होनी चाहिए, एकदम सूखी ड्राई होनी चाहिए। सूखी हवा होगी तो जल्दी से उसके अंदर से इवोपरेशन होगा। क्यों? क्योंकि हवा के साथ साथ पार्टिकल्स का भी मूवमेंट होता है, तो जितनी तेज़ हवा चलेगी, जितनी ड्राई चलेगी, उतनी ज़्यादा वहाँ से पार्टिकल्स दूर भागेंगे, और दूर भागने से उसका इवोपरेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी आप लोग को पता चला कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इवोपरेशन को। देन द नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग। तो इवोपरेशन कूलिंग कैसे फॉर्म करता है? आपको पता है ना कि जब भी आपको पसीना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, जब बहुत ज़्यादा पसीना होता है गर्मी की सीज़न में, तो धीरे धीरे अगर हम पंखे के नीचे खड़े रहते हैं तो क्या होता है कि ईजीली वो इवोपरेट हो जाता है और हमें एकदम ठंडा ठंडा फील होता है ना। तो इवोपरेशन कॉज कूलिंग, उसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर जो भी गैसेस पार्टिकल्स है वेपर के स्टेट में एटमॉस्फेयर का प्रेजेंट होते हैं, वो किसी ठंडी चीज़ के पास आ जाते हैं तो अगेन अपनी एनर्जी रीगेन कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, एनर्जी रीगेन करते हैं और लिक्विड स्टेट में आ जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, इवोपरेशन ठंडा सा फील करवाता है। तो देखो, इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवोपरेटिंग, so the particles of liquid absorb energy from the surrounding evaporation। जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो वेपर्स प्रेजेंट है उन्होंने क्या किया था कि एनर्जी लूज़ करके वहाँ पे वो भागे थे, मतलब तो वो क्या करेंगे, अगेन अपनी एनर्जी रिगेन करेंगे और लिक्विड के अंदर फॉर्म में आ जाते हैं। तो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूलिंग। अभी उसके अंदर से जो एनर्जी बाहर दिया हुआ था वो जब रीगेन कर लेगा, ठीक है, तो जो एनर्जी रीगेन कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी वजह से हमारे सराउंडिंग में कैसा हो जाएगा, हमें ठंडा फील करवाएगा। तो इसकी वजह से इवोपरेशन हमें क्या करता है, कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए कि अगर हम एसीटोन मतलब जो नेल पॉलिश रिमूवर है वो अगर हम हाथ में रखते तो क्या होता है, जो नेल पॉलिश रिमूवर है ना वो लिक्विड में से डायरेक्टली तुरंत मतलब इवोपरेट हो जाता है। तो जैसे ही वो इवोपरेट हो जाता है, तो जैसे हमने वो नेल पॉलिश रिमूवर को हाथ में डाला तो हमारे हाथ में क्या होता है, एनर्जी होती है, मतलब हाथ थोड़े गर्म होते हैं, सराउंडिंग के अंदर भी एनर्जी होती है। तो ये नेल पॉलिश रिमूवर के पार्टिकल्स एनर्जी गेन कर लेते हैं और तुरंत इवोपरेट हो जाते हैं। तुरंत इवोपरेट होने की वजह से हमें एकदम ठंडा सा फील करवाते हैं। ठीक है, उसकी दूसरी बात अगर हम बात करें कि जब हॉट सनी डे होता है, हॉट सनी डे जब होता है तो हम क्या करते हैं कि लोग क्या करते हैं कि छत पे जाके पानी छिटाते हैं। क्यों छिटाते हैं? क्योंकि हमें थोड़ा सा ठंडा फील हो। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम छत पे पानी डालते हैं तो पूरा दिन
उसने हीट गेन किया होता है, मतलब हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब किया होता है। तो जैसे ही हम छत पे पानी डालते हैं या फिर आसपास में हमारे सराउंडिंग के अंदर बाल जैसे गार्डन एरिया है तो उसके अंदर अगर हम पानी डालते हैं तो वो लैटेंट हीट जो होती है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, उसकी वजह से वो क्या करता है, छत को या सराउंडिंग को ठंडा कर देता है। समझ में आया? तो वो भी एक इवोपरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट देता है। वो कैसे पता चला? दूसरी बात है कि हम लोग समर के अंदर कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। हम क्यों क्लोथ्स पहनते हैं? तो अगेन उसके अंदर क्या होता है कि समर के अंदर बहुत ज़्यादा हमें पसीना आता है, ठीक है। तो पसीने की वजह से क्या होता है कि अगर हमने कॉटन के कपड़े पहने हैं तो वो जल्दी से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने की वजह से वो हमें क्या करता है, ठंडा फील करवाता है। तो हमें ज़्यादा गर्मी नहीं होती है कॉटन के कपड़ों में, राइट। So during summer we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. तो इवोपरेशन की वजह से जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड में जो सरफेस वाले पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी गेन कर लेते हैं, ठीक है। और एनर्जी गेन करने पे जब हम एनर्जी बढ़ाते हैं तो उनका चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है। तो लिक्विड के अंदर से वो किस में चले जाते हैं, वेपर में चले जाते हैं। तो वेपर में चले जाते हैं तो वो जो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है उसकी वजह से हमें बॉडी में एकदम ठंडा सा फील होता है। अब समझ में आ गया कि हम क्यों कपड़े कॉटन के पहनते हैं गर्मी के अंदर, ताकि हमें ठंडा फील हो, ज़्यादा गर्मी ना लगे। सरफेस ऑफ ग्लास, जैसे ही अगर आप फ्रीज़ के अंदर से ठंडा सा बॉटल निकालोगे और वो बॉटल आप अगर पास में ज़मीन पे रख देते हो या हाथ में पकड़ते हो तो तुरंत क्या हो जाएगा कि उसके अंदर से बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर से निकलेंगे। लेकिन वो वाटर बॉटल के अंदर तो पानी कम नहीं होता है, तो ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए, ऐसा क्वेश्चन होता है ना। तो वो ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं कि हमारी जो सराउंडिंग के अंदर जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती है तो वो वाटर वेपर के फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है, जो जैसे ही वो ठंडा सब्सटेंस के साथ टकराता है तो कोलाइड होने की वजह से वो उनका सब्लिमेशन हो जाता है, मतलब गैसेस के अंदर से वो किस में आ जाता है, सॉरी कंडेंसेशन हो जाता है। तो गैसेस पार्टिकल्स के अंदर से वो किस में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। इसीलिए हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। अगर किसी वाटर बॉटल को बाहर ठंडा रखा हुआ है या आइसक्रीम को रखा होता है तो उसके बॉल के आगे हमें ड्रॉपलेट्स दिखने लगते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि वो एनर्जी जो वेपर स्टेट में होता है तो वेपर स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स है वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देंगे, जो गेन करके वेपर स्टेट में गए थे वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देंगे। क्यों लूज़ करेंगे? क्योंकि उनके आसपास में एकदम ठंडा सराउंडिंग है तो उनको जाके टकराएंगे और वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। समझ में आया? तो ये था हमारा इवोपरेशन। तो यहीं हमने अपना चैप्टर कंप्लीट करना है। इस वीडियो के साथ आज मैं आपको नोट्स भी सेंड कर रही हूँ, तो आप होमवर्क अपलोड में चले जाना और वहाँ पे आप लोग आपकी नोट्स देख लेना, और वो नोट्स आपको नोटबुक में लिखना रहेगा। उसके अलावा आपको क्या करना है, मैं इसके साथ एक वर्कशीट सेंड कर रही हूँ और वो वर्कशीट भी आप लोग को लिख लेनी है। तो हम एक बार वर्कशीट को डिस्कस भी कर लेंगे क्लास जूम लेक्चर के अंदर, ठीक है। लेकिन आपको उससे पहले उसको शॉर्ट आउट कर लेना है। ओके, सी यू देन, बाय।